Hello guys, welcome back to my channel VBS Digital Media. In this video we will learn how to make an Google Analytics account and how to connect Google Analytics account to our website. Yes, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम अपना Google Analytics अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे हम उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे. So moving on to our screen. तो सबसे पहले हम चलते हैं analytics.google.com पे. This is a site data for global travel zone. Okay, I'm signing in to my another account. This is my new. I will make from a start. अगर आपकी ईमेल आईडी है दैट इज जीमेल आईडी है आपकी तो ऑटोमेटिकली आप उसके थ्रू साइन इन कर सकते हैं एनालिटिक्स में एंड उसके थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. सो हियर इट इज. एनालिटिक्स के थ्रू आप अपनी साइट का सारा डाटा ट्रैक कर सकते हैं. Now start measuring. Create your account name. Mine is Himachal Travelers. Property setup. Yes, all. Next. Property name Himachal Travelers.com. इस आईडी पे हम बना रहे हैं. रिपोर्टिंग टाइम ये आपको जहाँ भी आपका टाइम जोन है इफ़ यू आर आउट ऑफ इंडिया, वैसे नॉर्मली नहीं होंगे आप, बट इफ़ यू आर आउट ऑफ इंडिया तो आपको ये सिलेक्ट करना है अपना रीजन एंड टाइम जोन एंड करेंसी. क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट. वेट प्रॉपर्टी सेटअप शो एडवांस सेटिंग्स. Now you have to mark on this create a universal analytics property and create a universal analytic property. Okay, this is the main option you have to do it. अगर आप ये चूज करते हैं तो आप एप्लीकेशन के डाटा को ट्रैक करेंगे, वो आपका होगा नहीं. आप सिंपल अपनी वेबसाइट को ट्रैक नहीं कर सकते इस ऑप्शन में. आपको उसके लिए अगर आपने सिंपल अपनी वेबसाइट के डाटा को ट्रैक करना है यू हैव टू क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी ओनली. We will talk about this in another video. Okay. Now mine domain is where it is. Yeah. Google Drive. Now here we have to register this Himachal Travel. Now clicking on next. Industry company mine is travel. Talking about the name mine is travel agency. I am making this website for a travel agency. Okay, business size small. Measure everything. I want to measure everything coming on my website. Other create. Yes, I accept. Click on both the options. ओके, प्रॉपर्टी सेटअप के टाइम वो ध्यान देना कि आप G4 अकाउंट मत क्रिएट कीजिए, आप यूनिवर्सल अकाउंट क्रिएट कीजिए. क्लिकिंग ऑन सेव. इट इज सेविंग लोडिंग एंड डिसमिस. ये आ गया हमारा ट्रैकिंग आईडी एंड माय टैग्स. ओके, गॉट इट. अगर आप वो G4 अकाउंट बनाते हैं दैट इज G4 सेटअप असिस्टेंट, तो आप ये ट्रैकिंग आईडी आपके पास नहीं आती, इसकी जगह आपके पास कन्वर्जन आईडी आती एंड वो आप उससे अपना वेबसाइट का डाटा ट्रैक नहीं कर सकते. ओके, so make sure to click on a universal analytics account. Now clicking on I have my Google Analytics code for my property. Now I'm coming on to Google Tag Manager. We will install our Google Analytics code through our Google Tag Manager. अगर आपको टैग मैनेजर नहीं पता क्या होता है, सो ये एक होता है कोड ट्रिगरिंग के लिए. जितनी भी आपकी वेबसाइट्स पे कोड डलते हैं दैट इज फेसबुक पिक्सल्स,
or Google Analytics code, Google conversion code, Google retargeting, or any other HTML code, any of the code you want to put up in your website header, footer, or any page, you can trigger those tags through Google Tag Manager. मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बना रखी है, बट ये मेरी दूसरी आईडी पे है, मैं एक नई आईडी पे जाके प्रॉपर्टी बनाऊंगा. I am signing into himachaltravelers@gmail.com, my new email ID. Okay. Now आपको भी ऐसी स्क्रीन दिखेगी जब आप अपनी आईडी से एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे. नाउ क्लिकिंग ऑन क्रिएट अकाउंट, ग्लोबल ट्रैवल जोन, हिमाचल ट्रैवलर्स. Mine is India. Okay. Yes, we can share data with Google. My website, himachaltravelers.com. टारगेट प्लेटफॉर्म, मैंने अपनी वेबसाइट के डाटा को ट्रैक करना है, सो मैं अपनी वेब को ही टारगेट करूँगा. फॉर iOS एप्लीकेशंस, फॉर एंड्रॉयड, फॉर AMP पेजेस. AMP pages are accelerated mobile pages. We will talk about this in next lectures. Okay. And this is server. I don't know about this. For website data, you have to click on this option and create. Yes, I accept all the terms and agreements. Clicking on yes. And this is making my account. Now, Google Tag Manager is a simple setup you have to understand. If you know how to trigger those codes through Google Tag Manager, it will make everything easy for your website. You don't have to check your header or body tags where you have to put. You simply have to put those tags in Google Tag Manager. Now coming, ये मेरे पास मेरी Tag Manager के codes आ गए हैं. Now coming on my website. Where is my website? Logging into our website, Himachal Travelers. Now for WordPress websites to register, it is all registered. ये हम हमारी वेबसाइट की डैशबोर्ड पे आ चुके हैं. Now coming to plugins, add new. ये यहाँ पे आपको सर्च करना है हेडर फुटर इंजेक्शंस. ये हमारा प्लगइन है हेडर फुटर इंजेक्शंस. सी दिस, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ. मेक श्योर टू इंस्टॉल इट. इसमें आपको सिर्फ ये इंस्टॉल करना है. यहाँ आपके सारे टैग्स इंस्टॉल होते हैं. अगर आपको कोडिंग के बारे में नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कैसे आप अपने कोड्स को सेटअप कर सकते हैं, सिंपली इंस्टॉल दिस प्लगइन एंड एक्टिवेट. यहाँ पे आप अपने सारे टैग्स डाल सकते हैं इसके थ्रू. इट विल मेक इजी फॉर यू. यू डोंट हैव टू जस्ट चेंज योर कोडिंग और डोंट इंडल्ज इन द कोडिंग, क्योंकि कोडिंग से आप अपनी वेबसाइट खराब कर सकते हैं. अगर आपको कोडिंग नहीं आती है, आई डोंट रिकमेंड यू टू ट्रिगर योर टैग्स थ्रू कोडिंग इन द मिडल ऑफ पेजेस. सो हियर इट इज. यहाँ पे हम टूल्स पे आएंगे, नहीं सॉरी, सेटिंग्स पे आएंगे एंड हेडर एंड फुटर. यू कैन सी इट इज अ हेडर फुटर इंजेक्शंस. यहाँ पे मैं अपने कोड्स को मेंशन कर सकता हूँ. जो भी मैंने हेडर में अपने पेज के हेडर में कोड्स डालने हैं वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ. एंड बॉडी में डालने हैं तो बॉडी में डाल सकता हूँ. यू कैन सी 3 ऑफ द ऑप्शंस. ओके. नाउ कमिंग ऑन टू माय गूगल टैग मैनेजर कोड. पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ पेज एज पॉसिबल. ओके. सो क्लिकिंग ऑन दिस, I have put it in my header. Just copy, paste this code immediately after opening body tag. Okay. So you don't have to mention this on every page, every single home page. You have to mention this on every page. ये आपको हर पेज पे ट्रिगर करना है. और जो ये मेरा बॉडी टैग है, ये मैं अपने डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के लिए ही करूँगा. ओके. ये आपको दोनों साइड पेस्ट करना है कोड को. एंड इसको सिर्फ सिंगल
इसी एवरी पेज वाले सेक्शन में पेस्ट करना है एंड सेव. You can see it is already saved. Now checking on. For this you have to install a Google Tag Assistant Chrome extension. आपने अगर कोई भी कोड चेक करना है कि आपके वेबसाइट पे कौन से कोड्स ट्रिगर हो रहे हैं, मैंने शायद ऑलरेडी डाला हुआ है. दैट इज टैग असिस्टेंट लेगेसी बाय गूगल. एक ही आएगा यहाँ पे, आप उसके थ्रू चेक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट पे कौन से कोड्स ट्रिगर हो रहे हैं. फॉर नाउ मैंने कोई भी थीम डाली हुई है अपनी वेबसाइट पे. एंड चेकिंग दिस. Enable record. Now it will record all the tags. Okay. Now हमारा Google Tag Manager setup हो चुका है almost. I will show in the uh, coming section. Now अब हम आते हैं हमारे एनालिटिक्स पे. ये हमारा Google Tag Manager इंस्टॉल हो चुका है. I will show you. बट ये हमारी ट्रैकिंग आईडी. ना आई विल शो यू हाउ टू क्रिएट अ न्यू टैग एंड ट्रिगर इट थ्रू गूगल टैग मैनेजर. आप यहाँ देख रहे हैं, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ऐड अ न्यू टैग. अब ये मेरा है गूगल एनालिटिक्स का. ओके, चूज अ टैग टाइप. यहाँ पे आपको पूरे टैग्स मिलते हैं जो जो आपने अपनी वेबसाइट पे ट्रिगर कर सकते हैं. लाइक गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल, जी4 इवेंट, कन्वर्जन ट्रैकिंग. आप अपनी एड्स के थ्रू एड्स को भी इसके थ्रू टारगेट कर सकते हैं अगर आपने ट्रैकिंग कोड वहाँ से जनरेट किया हुआ है तो. रीमार्केटिंग, एनी कस्टम HTML कोड यू ऑल्सो कैन पुट इट थ्रू कस्टम HTML. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू, हमने करना है अभी यूनिवर्सल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, ट्रैकिंग पेज व्यू. ओके, settings, trigger firing, new variable. ना ये यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग आईडी को डालना है आपने, जो कि है. अगर आप G4 सेटअप करते तो ये ट्रैकिंग आईडी आपके पास नहीं आती उस टाइम. ओके, जस्ट सिंपली पुट ऑन पेस्ट दिस इन योर ट्रैकिंग आईडी एंड सेव. ये हमारे वेरिएबल को रीनेम करना है हमने. Google Analytics code and save. ओके, नाउ हमने यहाँ पे सिर्फ अभी सेटअप किया अपना कोड. अब यहाँ पे ट्रिगर का मतलब ये होता है हमने कौन कौन से पेजेस पे अपने जो टैग है उसको ट्रिगर करना है. सो आई एम सिलेक्टिंग ऑन ऑल पेजेस. अभी मैंने कोई पेज क्रिएट नहीं किया हुआ, बट आपको ऑल पेजेस सिलेक्ट करना है. नहीं तो आप यहाँ से जाके ट्रिगर एंड पेज व्यू, यहाँ पे आप सम पेजेस चूज करेंगे एंड आपका जो पाथ है, जिस पेज पे आपने सिंगल सिंगल अगर ट्रिगर करना है ये कोड, तो वहां पे आप /n/xyz कुछ भी पुट कर सकते हैं. दिस इज फॉर सिंगल सम पेज व्यूज. अगर आपने सिंगल पेज करना है या उस पाथ का सेम है, जैसे मेरी सर्विसेज है, मैंने सारी सर्विसेज के पेजेस पे इसको ट्रिगर करना है, तो आई विल सिंपली चूज /services स्लैश एंड ऑल ऑफ दोज पेजेस विल बी कवर्ड जिसमें मेरी सर्विसेज का ये पाथ चल रहा होगा. यू कैन मेक योर्स. दिस इज फॉर हैवी टारगेटिंग. आप ये भी कर सकते हैं. Just I will discard this and I will select all and add. Okay, and save.
ये हमारा सेव हो गया एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सबमिट. You have to submit your changes and publish. Now Google Analytics code setup. ओके, वर्कस्पेस चेंजेस. पहले हमने टैग क्रिएट किया, फिर वेरिएबल. ओके, नाउ मेकिंग इट लाइव. पब्लिश टू एनवायरनमेंट एंड पब्लिश. आई हैव क्रिएटेड माई टैग. मेरा एक टैग बन चुका है. नाउ वी विल चेक. Just reload your website. Okay, and check your tag assistant. You can see analytics tag trigger हुआ पड़ा and analytics tag भी trigger हुआ पड़ा. तो ऐसे आप अपनी साइट के एनालिटिक्स को ट्रैक कर सकते हैं सिंपली थ्रू गूगल टैग मैनेजर. If you find it informational, please subscribe our channel and like our video. Thank you.